we were discussing. Now question number 39th. Question number 39th. A particle is dropped vertically from rest from a height. The time taken by it to fall through successive distances of 1 meter each will then be. So देखिए पार्टिकल ड्रॉप किया गया है और हमने टाइम टेकन निकालना है, कंसेक्टिव टाइम की क्या रेशियो होगी जब वो पार्टिकल गिर रहा है और एक एक मीटर दूरी से गिर रहा है, एक एक मीटर डिस्टेंस के लिए, तो टाइम्स की रेशियो। देखिए पहला 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल, वो कितने टाइम में कर रहा है? 1 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। आई से दिस टाइम एज t1। ये पहला 1 मीटर है बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी पहले कितनी थी? 0। सो आप देखिए t1 इज रूट ऑफ 2 बाय जी, t1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 बाय जी। अब सेकेंड 1 मीटर जब वो गिरेगा तो इट हैज गेन्ड सर्टेन वेलोसिटी, तो इट हैज गेन्ड सर्टेन वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज दैट वेलोसिटी व्हाट इट हैज गेन्ड? v is equal to gt1, v is equal to gt1. Now this is the velocity gained after a time t1, so v will be equal to g into t1 is root 2 by g, so this is equal to root 2g, this is equal to root 2g. This is the velocity attained by the particle after traveling a distance of 1 meter, and 1 meter distance is traveled in this particular time. So after a time t1 the velocity is root of 2g. Now for the second 1 meter distance, it is having this velocity as initial velocity, this will act as initial velocity, and it has travelled a distance 1 meter. Let's say the time taken is t2. Now we can make an equation for this. 1 is equal to ut2 plus half g into t2 ka square. Now this equation, this will become a quadratic equation. So g into t2 square plus 2u into t2 minus 2 is equal to 0. Now we can solve this quadratic equation. t2 will be equal to, I am solving this quadratic equation here, t2 is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac, तो ये हो जाएगा प्लस बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन हेयर, प्लस 4ac b square minus 4ac 4 8g whole upon 2a is 2g. So this will be, this time will be minus 2 u की वैल्यू वो v के बराबर होगी, तो u इज इक्वल टू रूट 2g सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस माइनस। नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन टेक, इसको वैल्यू पुट अप कर देंगे पहले, 4 इंटू यू स्क्वायर इज 2g, यू स्क्वायर इज 2g, सो 8g प्लस 8g होल अपॉन 2g. Now I will just use this space here. Now this will be taking, this will be equal to minus 2 root 2 g plus minus. Now 8 and 8 16g, 16 4 times root g whole upon 2g. So time cannot be negative, so we will ignore the negative sign. So what we will get is, this will be equal to 2 times root of g minus root 2g whole upon g.
We have cancelled 2. Now 2 times root of g minus root 2g upon g. So this can be written as 2 minus root 2 whole upon g. Now you can take the ratio of this is time t2, you can take the ratio of time t1 by t2. Now supposing we want this ratio t1 by t2, so t1 by t2 will be equal to root 2 upon g, will cancel out root g, there is a root g below. So root g will cancel out from both sides upon 2 minus root 2. You can take root 2 common, so the ratio will become 1. I can write it like this. Now see in the answers, first A part, it is given in the ratio of square roots of integers 1, 2, 3. Second part, it is given B part, all equal being equal to root 2 by g. This also is not the answer. Now third part, C parts, in the ratio of the difference in the square roots of the numbers, that is root 1 is to root 2 minus root 1 is to root 3. Yes, this is the answer. We are getting the ratio in this. So answer is C part. 39th answer is C part. Now we'll go on to the next question, that is the 40th question. Question. A drunkard man is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on the road 11 meter away from the starting point. The drunkard will fall in the pit after. Now this is a very good question. देखिए, एक drunkard आदमी है, शराबी, चले जा रहा है 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड, 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड, और एक आगे कुआं है 11 मीटर अवे. सो नाउ वी आर टू फाइंड कि और एक स्टेप चलने में वो 1 मीटर डिस्टेंस चलता है और 11 मीटर दूर उससे खड्डा है, और एक स्टेप चलते वक्त ही टेक्स 1 सेकेंड ऑफ टाइम. तो हमने पता करना है कि वो पिट में कितने टाइम बाद गिर जाएगा. देखिए इसमें कॉमन गलती होने का चांस है इस क्वेश्चन में. अगर तो हम टोटल डिस्टेंस, अब इफेक्टिवली अगर हम देखें कि वो 8 स्टेप्स चलता है, 8 स्टेप्स इन विच ही मूव्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिवली ही इज मूविंग 2 स्टेप्स फॉरवर्ड. तो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में, 8 सेकेंड में. अब 11 मीटर दूर है पिट, तो अगर इसमें गलती होने का चांस ये है कि हमें पता चल गया भी स्पीड ये है, डिस्टेंस पता है, तो वी कैन फाइंड द टाइम डायरेक्टली. लेकिन द प्रॉब्लम इज एक बार वो 5 मीटर चलने के बाद लास्ट 5 मीटर जब वो चलेगा, लास्ट 5 स्टेप्स जब वो चलेगा, तो वो कुएं में गिर जाएगा, पिछले 3 स्टेप्स नहीं आ सकता. तो इसका मतलब क्या है, शुरू के 6 मीटर चलने के लिए लास्ट के 5 मीटर हम छोड़ देते हैं, और शुरू के 6 मीटर चलने के लिए वी फाइंड कि उसको टाइम कितना लगता है. नाउ देखिए उसको टाइम कितना लग जाएगा 6 मीटर चलने के लिए. 2 मीटर चल रहा है वो 8 सेकेंड में, तो 6 मीटर चलेगा वो यूनिटरी मेथड 24 सेकेंड्स. नाउ 6 मीटर के लिए तो 24 सेकेंड लग गए. आगे 5 मीटर वो 5 स्टेप से आगे फर्दर चला गया, तो ही विल फॉल इनटू द पिट, सो ही विल टेक 5 सेकेंड्स फॉर मूविंग दोज पर्टिकुलर 5 स्टेप्स. So the total time taken by him is 29 seconds. Now this is 40th question. Now we'll go on to the 41st question. 41st question देखिए बेटा. A body starts from rest and is uniformly accelerated from 30 seconds. The distance traveled in the first 10 seconds is x1, next 10 seconds is x2, and last 10 seconds is x3, then x1 is 2, x2 is 2, x3 is. तो एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, पहले 10 सेकंड में x1 चलती है, अगले 10 सेकंड में x2 चलती है, उससे अगले 10 सेकंड में x3 चलती है. हमने पता करना है ये रेशियो क्या होगी. ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ. इसमें क्या है, टाइम के
पैकेट्स में, इक्वल टाइम के पैकेट्स में जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं दे आर इन द रेशियो, द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड आर इन द रेशियो 1:3:5:7. सो ये किस रेशियो में आ जाएंगे? 1:3:5. So answer becomes C part. Answer will be C part. Now 40, we'll go on to the 42nd question. From a 200-meter high tower, one ball is thrown upwards with a velocity 10 meters per second and another is thrown vertically downwards at the same speed simultaneously. The time difference of their reaching the ground will be. तो एक टावर से बेटा हमने क्या करा है? We have thrown a ball vertically upwards that is at 10 meter per second और दूसरी को हमने डाउनवर्ड सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड देके फेंक दिया है. अब क्या कह रहा है? टाइम डिफरेंस, ये 200 मीटर हाई टावर पे हैं और ये ग्राउंड है, तो कितना टाइम डिफरेंस लगेगा इस वाली गेंद को नीचे पहुंचने में? ये लेट पहुंचेगी, पहली वाली गेंद जिसको ऊपर फेंका है वो लेट पहुंचेगी, ये जल्दी पहुंचेगी. ये कितना लेट पहुंचेगी ये पूछ रहा है हमसे. तो देखिए इस वाली गेंद को वापिस इसके अपने लेवल पे पहुंचने के लिए टाइम लग जाएगा 2u/g. तो 2u/g टाइम बाद जब ये वापस यहां पे आ जाएगी तो फर्स्ट गेंद के पास भी वही वेलोसिटी होगी जो सेकंड वाली गेंद के पास है. तो इसका मतलब है यहां से तो टाइम सेम लगेगा दोनों को, लेकिन ये टाइम लगा एक्स्ट्रा. वो कितना है? 2u/g. वो एक्स्ट्रा लगा किसको? 1 को. 2u, u is 10 and g we can take as 10. So this will be equal to 2 seconds. So time will be 2 seconds. 2 seconds will be extra time taken by the first ball. Now 43rd question. Next question. A particle moves with a constant acceleration if v1, v2, v3 are the average velocities in 3 successive intervals t1, t2 and t3 of time, then the correct relation is. तो ये आपको कह रहा है कि देखिए v1, v2, v3 वेलोसिटीज हैं बेटे, और ये कौन सी एवरेज वेलोसिटीज हैं? 3 सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स. कौन से टाइम इंटरवल्स? t1, t2 और t3 सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स में. तो हमने ये पता करना है, देखिए जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. तो यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा दैट विल बी कांस्टेंट. तो आप देखिए आई कैन सिंपली राइट v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 विल बी इक्वल टू v3 माइनस v2 होल अपॉन t3 माइनस t2. अब आप देखिए इस पर्टिकुलर वैल्यूज को हम अपने गिवन जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, जो गिवन आंसर्स हैं उससे मिलाएंगे. तो आप देखिए सबसे पहली बात है उसने नेगेटिव साइन एडजस्ट कर रखा है बिकॉज ये हैज टेकन t1 माइनस t2 और t2 माइनस 3. तो हम नेगेटिव साइन एडजस्ट कर देंगे. कैसे? नीचे से नेगेटिव साइन कॉमन लेके इसको ऊपर एडजस्ट कर देंगे. तो क्या आ जाएगा? v1 माइनस v2 होल अपॉन t1 माइनस t2. इससे नेगेटिव साइन कॉमन लिया, ऊपर एडजस्ट कर दिया. दिस विल बी इक्वल टू v2 माइनस v3 होल अपॉन t2 माइनस t3. नाउ आपके पास v1 माइनस v2 होल अपॉन v2 माइनस v3 इज इक्वल टू t1 माइनस t2 होल अपॉन t2 माइनस t3. यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है इसमें? सी पार्ट. ऑप्शन इज सी पार्ट. नाउ 44th क्वेश्चन. देखेंगे जरा. A steamer takes 12 days to reach from part A to B. Every day, only one steamer sets out from both the ports. How many steamers does each boat meet in the ocean sea? Very nice question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. देखो बेटे, 2 पोर्ट्स हैं. पोर्ट्स आप समझते हैं किनारे नदिया के. तो और इनके बीच में now steamers are leaving from A and B. तो steamers A और B से निकल रहे हैं और एक steamer को क्या कह रहा है? Steamer takes 12 days.
एक स्टीमर ए से बी या बी से ए पहुंचने में 12 दिन लगते हैं। तो कहता है और हर दिन दोनों साइड से एवरी डे ओनली वन स्टीमर सेट्स आउट फ्रॉम बोथ द पोर्ट्स, दोनों छोर से एक स्टीमर जो है रोज डेली छोड़ा जाता है। तो और एक स्टीमर 12 दिन लेता है। तो वो कहता हाउ मेनी स्टीमर्स डज ईच बोट मीट इन दी ओशन, तो कितने स्टीमर, एक स्टीमर कितने और स्टीमरों को मिलेगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम 12 दिन एक का रेफरेंस ले चलें, 12 दिन तक एक स्टीमर चलता रहेगा पानी में, तो इसका मतलब है 12 स्टीमर इधर से और 12 स्टीमर इधर से, कुल मिला के 24 स्टीमर्स एट ए टाइम सी में हैं। अब एक स्टीमर कितने औरों को देखेगा, अपने आप को छोड़ के वो बाकी 23 को मिलेगा ही मिलेगा। सो ही विल मीट 23 स्टीमर्स। सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर है सी पार्ट। हाँ जी, नेक्स्ट 45th क्वेश्चन बेटा। The displacement time graph of a object moving with constant velocity can be depicted by which of the following graphs। तो देखिए ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और 4 हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। हमें यह बताना है कि कौन से में कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो देखो बेटे बी ग्राफ देखिए, बी ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जो बन रहा है वो इस तरह का बन रहा है, यानी कि किसी भी टाइम पे मैं देखूं तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है ये वाला ग्राफ डिपिक्ट करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 46th क्वेश्चन। नेक्स्ट 46th क्वेश्चन। The velocity time graph of the particle in linear motion is shown. Both v and t are in SI units. What is the displacement of the particle from the origin after 8 seconds? हमने पता करना है displacement of the particle after 8 seconds from the origin क्या होगी। तो अब आप देखिए बेटा ग्राफ कौन सा दिया हुआ है आपको, इस तरह का, ये इस तरह का आपको ग्राफ बना रखा है। ये +4 बता रखा है और यहाँ पे 1 3 4, ये बेटे कितना 5 और ये 7, ये 8 और यहाँ पे -2। अब देखिए जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट है, दिस विल बी पॉजिटिव, और ये वाली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। उसने हमसे कुल ये डिस्प्लेसमेंट पूछी है 0 से लेके 8 तक जो होती है। अब ये टाइम और यहाँ वेलोसिटी। देखो बेटे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें पता है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो जो नीचे वाले एक्सिस में होगी वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, ऊपर वाली पॉजिटिव होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिस्प्लेसमेंट, इस वाली डिस्प्लेसमेंट में से ये वाली सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटे ये साइड कितनी है 4 प्लस ये साइड कितनी है 2 लेंथ की है, इंटू हाइट कितनी है 4 माइनस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड बेटे 2 लेंथ की है और इसकी लेंथ कितनी है 4 और इंटू क्या बेटा 2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये है 6 4 24 24 12 12 माइनस ये 6 मीटर। सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर। सो आंसर कौन सा बनता है इसमें बेटा, ए पार्ट। 46th क्वेश्चन, आंसर इज ए पार्ट। Now we'll go on to the next question, that is 47th question. Now a rocket is fired upwards, its engine explodes fully in 12 seconds. The height reached by the rocket as calculated from the velocity time graph. तो देखिए एक रॉकेट की फायरिंग की गई है और वो पूरा
इट्स इंजन एक्सप्लोड्स फुली इन 12 सेकेंड्स। और हमने क्या पता करना बेटा, वी आर टू कैलकुलेट व्हाट इज द हाइट अचीव्ड बाय द रॉकेट। ये देखिए इस तरह का ग्राफ हमें गिवन है, ये 132, ये 12 सेकेंड्स, और ये वाला 1200, यहाँ वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम। तो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें आपसे पूछा है कि भी रॉकेट जो है वो फुली एक्सप्लोड कर जाता है कितना, 12 सेकेंड टाइम पे, और हमने क्या पता करना है, द हाइट रीच बाय द रॉकेट, क्या हाइट रॉकेट अचीव करेगा वर्टिकली अपवर्ड्स। सो हाइट अचीव्ड बाय द रॉकेट विल बी एरिया अंडर दिस ग्राफ, अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू बेस, बेस कितना है 132, इनटू हाइट इज 1200, ये कितना हो गया 1200 into 66, these many meters. Next question बेटे 48th question. Next question. A body moves for a total of 9 seconds starting from rest with uniform acceleration and then with uniform retardation, which is twice the value of uniform acceleration. The time taken during retardation, आपने टाइम निकालना है रिटार्डेशन में। सो बॉडी के लिए कुल टाइम कितना है 9 seconds. Now let's say acceleration is alpha, then retardation beta will be 2 times alpha, because it is written in the question uniform retardation which is twice the value of acceleration. So uniform retardation means beta is twice of alpha. तो वो आपसे क्या कह रहा है बेटे, the time for retardation, कि कितना टाइम वो रिटार्ड किया, आपको टोटल टाइम उसने दे रखा है। तो देखो ये हमने एक रिजल्ट किया था v मैक्सिमम, देखो पहले क्या होगा, पार्टिकल अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाए तो क्या होगा बेटे, पहले पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, उसके बाद फिर पार्टिकल डिसेलरेट कर रहा है। तो कुछ टाइम के लिए वो एक्सेलरेट करता है, वी डोंट नो, एंड कुछ टाइम के लिए वो डिसेलरेट करता है, तो बीच में उसकी मैक्सिमम स्पीड अचीव होती है। नाउ v मैक्सिमम इज व्हाट, अल्फा इनटू बीटा होल अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू टोटल टाइम t। तो अल्फा इनटू ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बटा 3 अल्फा इनटू t, टोटल टाइम इज 9 सेकेंड्स। सो ये आपके बेटे कितना हो गया 6 अल्फा, this becomes 6 alpha, that means maximum velocity achieved by the particle is 6 alpha. तो अब आपने ये टाइम t2 निकालना चाहते हैं आप कि ये t2 टाइम है कितना। सो देखिए यहाँ पे v मैक्सिमम से वेलोसिटी 0 हो रही है, सो 0 माइनस v मैक्सिमम इज इक्वल टू बीटा इंटू टाइम t2। u प्लस एटी वाला फॉर्मूला लगाया है, ये नेगेटिव साइन इसके आगे लग जाएगा बिकॉज दिस इज रिटार्डेशन, तो नेगेटिव साइन से कट जाएगा। तो t2 कितना आ गया 6 अल्फा बटा 2 अल्फा, 6 अल्फा बाय बीटा, तो बीटा इज 2 अल्फा, तो दैट मींस 3 सेकंड्स। तो इसका मतलब है एक्सेलरेट वो कर रहा है 6 सेकंड के लिए और डेसेलेट कर रहा है वो 3 सेकंड के लिए। सो आंसर क्या हुआ बेटा, आंसर इज ए पार्ट। नाउ 11th नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 49th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, a particle is moving eastward with a velocity 10 meter per second. In 10 seconds the velocity changes to 10 meter per second northward. The average acceleration during this interval will be, तो देखिए पार्टिकल कैसे जा रहा है ईस्टवर्ड, कितनी स्पीड से। अब इसके लिए आपको डायरेक्शन चार्ट पता होना चाहिए, ये ईस्ट है बेटे, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ईस्ट कितनी स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और फिर उसके बाद क्या करता है, इट टर्न्स चेंजेस 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड, 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड, और कितने टाइम में चेंज हो रहा है ओनली 10 सेकंड्स। तो आप देखिए आपको क्या चाहिए, ये वेलोसिटी अगर मैं b कह दूं, ये वेलोसिटी यदि मैं a कह दूं, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी vb वेक्टर माइनस va वेक्टर होल अपॉन टाइम।
तो यानी अगर इसका नेगेटिव वेक्टर ले रहे हो तो इसकी डायरेक्शन कैसी कर दोगे, टुवर्ड्स वेस्ट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना आपने बेसिकली। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, 10 अंडर रूट 2, 10 टाइम रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 10 अंडर रूट 2, और ये टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। ये डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट। So this will be equal to 10 root 2 over 10, that is equal to root 2 meter per second square। आंसर क्या बनता है, नॉर्थ वेस्ट। सो आंसर इज ए पार्ट। 11th का आंसर है बेटे ए, 49 क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स ए एंड बी initially 120 kilometer apart start moving towards each other on the same track with a velocity of 60 km per hour each. At the moment of start, A blows a whistle which reflects on B and subsequently reflects from A and so on. Take the velocity of sound waves in air as 1200 km per hour, the distance travelled by sound waves before the two trains crash. तो ये दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बेटे। इसमें क्या है, दो ट्रेनें ए और बी 120 मीटर दूर हैं, 120 किलोमीटर दूर हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये एक ट्रेन बेटे ए और ये एक ट्रेन बी, दोनों आमने सामने आ रही हैं। दोनों की स्पीड कितनी है, 60 और 60, यूनिट्स ऑफ कोर्स किलोमीटर पर आवर। तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो 120 किलोमीटर है। ये एक ट्रेन क्या करती है कि विसल ब्लो करती है, वो विसल बी से रिफ्लेक्ट होती है, बी से वापस ए पे, इस तरह से विसल जो है वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी। आपको पता करना है कि कितना डिस्टेंस साउंड वेव्स ट्रेवल कर लेंगी बिफोर दी टू ट्रेन्स दे क्रैश ईच अदर। तो देखिए अगर हम एक ट्रेन को रेस्ट पे कर दें, मान लो बी को रेस्ट पे कर दें और ए को ही चलता माने, तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, दैट विल बी इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, because this is equal to 60 minus 60. Now time after which the two trains will crash, so time is equal to distance upon VAB। तो distance कितना है जी, 120 over 120, that is 1 hour। That means the two trains will crash after 1 hour। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारी साउंड के पास चलने के लिए 1 घंटा है, तो 1 घंटे पर साउंड जो है वो चलती रहेगी। तो और साउंड की स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए साउंड तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 1200 इट इज गिवन एंड टाइम इज 1 आवर, सो डिस्टेंस इज 1200 किलोमीटर। यानी कि साउंड जो है वो 1200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 51st बेटे। The coordinates of a moving particle at any time t are given by x is equal to alpha t cube and y is equal to beta t cube. The speed of the particle is given by, तो ये स्पीड हमने पार्टिकल की निकालनी है। x कोऑर्डिनेट दिया हुआ पार्टिकल है, y कोऑर्डिनेट दे रखा है, दोनों एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहले आप क्या निकाल लो, स्पीड इन x डायरेक्शन, दैट विल बी dx by dt दैट इज इक्वल टू 3 अल्फा t स्क्वायर। और फिर आप वेलोसिटी y डायरेक्शन निकाल लो, वो क्या हो जाएगी dy by dt दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स बीटा t स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, इनकी रिजल्टिंग वेलोसिटी चाहिए ना, नेट वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 अल्फा स्क्वायर t की पावर 4 प्लस 9 बीटा स्क्वायर t की पावर 4। ये कितना हो गया, 3t स्क्वायर तो आ गया कॉमन, और अंदर क्या रह गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो आंसर कौन सा बनता है इसमें, देखते हैं चॉइस। तो ये बन गया बेटा डी पार्ट, डी फॉर दिल्ली। नाउ 52nd क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown upwards. It takes 4 seconds to reach back to the ground. Find its initial velocity. एक गेंद है बेटे,
वो अपवर्ड फेंकी और 4 सेकंड बाद हाथ में आ जाती है, वापस आ जाती है बैक टू द ग्राउंड। फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। लेट अस से इनिशियल वेलोसिटी इज u। आपको ये बात पता है कि अगर हमने u वेलोसिटी से कोई चीज फेंकी तो वो वापस हमारे पास कितने टाइम में आ जाती है, 2u/g टाइम में। तो 2u/g इज गिवन टू अस एज 4। नाउ u will be equal to 4 into 10/2. So this is equal to what? Answer is 20 meter per second. So answer है हमारे पास, answer is D for Delhi. Next question देखेंगे बेटे। Next question 53rd question. A ball is thrown from height h and another from 2h. The ratio of the times taken by the two balls to reach the ground is. तो देखिए balls are thrown from height h and another from 2h. तो आपको टाइम पता करने हैं। Now you know that t is root of 2h/g, यानी कि time is directly proportional to square root of height from which it is thrown. So t, एक को फेंका गया किस हाइट से बेटे, एक को h से दूसरे को 2h से, तो t is proportional to root h for one and t2 is proportional to root of 2h। दूसरे केस में हाइट 2h है, तो t1 अपॉन t2 ये रेशियो किसके बराबर होगी बेटे, 1/√2। सो आंसर है हमारे पास, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। आंसर बिकम्स ए पार्ट। नाउ बेटे 54th क्वेश्चन। A student standing at a distance of 50 meters from a bus, as soon as the bus begins its motion with an acceleration of 1 meter per second square, he suddenly starts running towards the bus with a uniform velocity u. Assuming the motion to be along the straight road, the minimum value of u so that the student is able to catch the bus. तो देखिए एक बस से एक स्टूडेंट 50 मीटर दूरी पे बेटे, और जो बस है उस वो मोशन शुरू कर देती है, तो वो एक्सेलेरेट करना शुरू करती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही बस मोशन शुरू करती है, जो स्टूडेंट है वो बस की तरफ भागना शुरू कर देता है, और हमें पता करना है कि उसकी कम से कम स्पीड क्या हो कि वो बस को कैच कर ले। सो देखिए अगर बस 50 मीटर दूरी कवर करे तो वो कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगी वो हम निकाल सकते हैं। बस की इनिशियल स्पीड 0 है बेटे, तो v² माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल टू रूट 2ad। 50 मीटर दूरी करने के बाद बस इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। जो हमारा स्टूडेंट है अगर उसकी वेलोसिटी इससे बड़ी नहीं है तो वो बस को नहीं पकड़ सकता। तो अगर उसने बस को पकड़ना है तो इस वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी बड़ी होनी चाहिए, तो यानी कि u शुड बी ग्रेटर देन रूट 2ad, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हद से हद इक्वल तो होना ही चाहिए। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इज 1 and distance is 50, so this will answer will become equal to root of 100, तो ये कितना आ गया 10। सो आंसर है इसमें हमारे पास, यस आंसर इज सी पार्ट, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कम से कम उसके पास होनी चाहिए टू कैच दी बस। नाउ नेक्स्ट बेटे 55th क्वेश्चन। Now next question क्या कह रहा है बेटे, the displacement time graph of two bodies A and B are shown in the figure. The ratio of velocity of A to velocity of B is given by। आप देखिए बेटे ये हमारे पास velocity और टाइम का ग्राफ है, सॉरी दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और इसमें हमें क्या दे रखा है बेटे, ये दो ऐसे बॉडीज का ग्राफ दे रखा है, ये A और ये B। ये एंगल बना रही है 30 का और ये एंगल बना रही है 60 का। हमने क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ A टू B। आपको पता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए मेजर ऑफ वेलोसिटी, सो वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू tan of 30, वेलोसिटी ऑफ B
इज इक्वल टू 10 ऑफ 60। अब आप देखिए वेलोसिटी ऑफ ए इज 1/√3 और बेटे वेलोसिटी ऑफ बी इज √3 VA/VB। ये डिवाइड कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 1/√3/√3, तो कितना हो गया 3। V/VB इज इक्वल टू 1/3। आंसर इज सी पार्ट। (56th क्वेश्चन बेटे, a body of mass 2 kg has initial velocity of 5 meter per second along OE। तो बेटे O और ये E लगा देता हूं मैं। इसकी वेलोसिटी डायरेक्टेड है टुवर्ड्स OE और वो वेलोसिटी है कितनी 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो क्या कह रहा है, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू OE। तो 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है बेटे, कैसे, परपेंडिकुलर टू OE डायरेक्शन। The distance of the body from O after 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद बॉडी का डिस्टेंस हमने पता करना है किससे, O पोजीशन से। तो अब देखिए इसको बेटे कैसे करेंगे सॉल्व। आप ऐसा करो, दोनों वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग अलग पढ़ लो। कैसे, अब एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, हमें फोर्स गिवन है, तो फोर्स बेटे मास इनटू एक्सेलरेशन, 4 इज इक्वल टू मास कितना है 2, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस कितने टाइम में बेटे देखना, हमने डिस्टेंस देखना है 4 सेकेंड्स में। तो डिस्टेंस, ये जो एक्सेलरेशन है 4 सेकेंड में, इसको कितना लेके जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, वो देख लेते हैं। वर्टिकल कितना चलेगा ये, तो दैट विल बी s इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन इंटू 4 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू बेटे 16 मीटर। यानी कि जो ये एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये इसको 16 मीटर दूर ले गई। अच्छा, नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी इसके पास, वो वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टली OE डिस्टेंस जो OE साइड पे चलेगा ये हॉरिजॉन्टल में, दैट विल बी s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इज 5 एंड टाइम इज 420। तो यानी कि हॉरिजॉन्टली 20 मीटर चला और वर्टिकली चला 16 मीटर। तो रिजल्टेंट बेटे क्या हो जाएगा ये, तो दिस रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना बेटा 400 और 16 का स्क्वायर कितना है 256। तो ये कितना आ गया रूट 656। दिस इज रूट 656। नाउ अप्रॉक्सीमेटली बेटे रूट 656 किसके बराबर होगा, 625 का रूट होता है 25। तो ये लगभग 25 और 26 के बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए। सो आंसर इज सी पार्ट बेटे। आंसर आपको 26 मीटर दे रखा है, तो आंसर नियरली सी पार्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटे 57th क्वेश्चन। 57th क्वेश्चन देखेंगे। A body of mass 1 kg crossing a point O with velocity 60 meter per second, a force of 10 Newton directed towards O begins to act on it. It will again cross O in। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटे इसमें क्या है, एक बॉडी दे रखी है 1 किलो मास की और ये कोई पॉइंट O है। ये इस पॉइंट O को क्रॉस कर रही है कितने में, किस वेलोसिटी से क्रॉस कर रही है 60 मीटर पर सेकंड से। तभी एक फोर्स 10 न्यूटन की इस पे लगा देते हैं। और फोर्स कैसे लगा रही है आपने बेटे, 10 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगाई है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि दोबारा ये इस पॉइंट पे कितने टाइम बाद O पॉइंट को दोबारा क्रॉस करेगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हमें बॉडी का मास दे रखा है बेटे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप ऐसा कीजिए, जब ये बॉडी ऐसे जा रही है तो ये एक्सेलरेशन ऐसे होगी, तो यानी कि रिटार्डेशन होगी बॉडी पे। वो रिटार्डेशन निकाल लीजिए। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कितनी हो जाएगी बेटे, रिटार्डेशन विल बी इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है दैट इज 10/1, 10/1, तो दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन होगी और इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दूंगा, दिस डिपिक्ट्स रिटार्डेशन। अब क्या होगा,
बॉडी 60 मीटर पर सेकंड से जा रही है और नेगेटिव एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, ये क्या करेगी, इस बॉडी को रेस्ट पे ले आएगी, रिटार्ड करेगी धीरे धीरे और ये बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। तो रेस्ट पे आने वक्त उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब हम ये निकाल लेते हैं कि इसको कितना टाइम बाद ये रेस्ट पे आ जाएगी। तो देखिए उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो 0 इज इक्वल टू u कितना है बेटे 60, ए टी माइनस 10 इंटू टी। तो t इज इक्वल टू बोलिए 6 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, यानी कि ये बॉडी यहां से जब ये रेस्ट पे आई तो इसको टाइम लग गया बेटा कितना 6 सेकेंड का। अब ये बॉडी रेस्ट पे आ गई लेकिन फोर्स तो लग रही है। अब ये रेस्ट से क्या होगी, एक्सेलरेट होगी सेम डिस्टेंस के लिए। तो नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कि ये बॉडी चली कितना, ये डिस्टेंस, ये ओ ए डिस्टेंस कितना चली। तो ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे डिस्टेंस निकालने के लिए बेटे हम यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू 10 इंटू एस। तो s कितना हो जाएगा बेटे, ये 60 इंटू 60 बटा 20, ये कितना हो गया, ये s 180 मीटर। यानी कि ये जब रेस्ट पे आएगी तो 180 मीटर दूर होगी पॉइंट O से। तो अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस हमें पता चल गया, एक्सेलरेशन हमें पता है, रिवर्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो देखिए 180 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेटे एक्सेलरेशन इज 10 इंटू टी का स्क्वायर। ये कौन से टाइम निकाल रहे हैं हम, ये वो टाइम निकाल रहे हैं जब ये बॉडी वापस आ रही है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी बेटे, मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है। तो यहां से 180/5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना आ गया बेटे 36, यानी कि टी आ गया 6 सेकेंड। यानी कि जब ये यहां से यहां गई तो 6 सेकेंड इसको टाइम लगा इसकी वेलोसिटी 0 होने को, और वापस यहां से यहां पहुंचने के लिए भी इसको 6 सेकेंड का टाइम लगा। तो इन ऑल बॉडी कितने टाइम बाद वापस ओ पे आएगी, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड्स बाद। 6 + 6 12। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे बेटे। आंसर क्या बना इसका, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज 58th क्वेश्चन। 58th क्वेश्चन बेटे, if the ball is thrown vertically upwards with a speed u, the distance covered during the last t second of its ascent is। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे। नो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वैसे तो इसका रिजल्ट हमें याद रख लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा। देखिए कैसे, एक बॉल है बेटे, इसको u स्पीड से आपने ऊपर फेंका, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब इसकी स्पीड 0 होगी ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा, तो तब तक इसका मोशन चलता रहेगा, इट विल अचीव सर्टेन मैक्सिमम हाइट। और बेटे उसके बाद क्या है, हमसे वो पूछ रहा है अखीरले टी सेकंड में, लास्ट टी सेकंड में व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट टी सेकंड्स ऑफ इट्स असेंट। देखो इसको कैसे करेंगे, ऐसा है बेटे, टोटल टाइम ले लो आप। टोटल टाइम में ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कितना टोटल टाइम लेगा ऊपर मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए, वो टाइम आपको पता है, दैट टाइम इज u/g। नाउ दिस इज द टोटल टाइम। और ये मैक्सिमम हाइट क्या अचीव करेगा ये भी हमें पता है, ये क्या होगी बेटे, u² बाय 2g, दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। अब हमने लास्ट टी सेकंड का डिस्टेंस निकालना है कि लास्ट टी सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने। तो हम क्या करते हैं, ये हमें टोटल डिस्टेंस ये तो पता है कि कुल यहां से यहां तक ये मैक्सिमम हाइट h अचीव कर रहा है। हम क्या करते हैं कि टोटल टाइम जो यहां से यहां तक लगता है वो हमें पता है, तो t - t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये निकाल लेते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए वी विल यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut + ½ at²। तो बेटे ये डिस्टेंस मैं मानता हूं स्मॉल h डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू u इंटू कैपिटल T माइनस स्मॉल t
माइनस हाफ बेटे क्या चीज g इंटू टी माइनस टी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे बेटे, तो u इंटू, अब जहां जहां t है उसकी जगह पे हम क्या वैल्यू डाल देंगे u बाय जी, तो u बाय जी माइनस क्या चीज t माइनस हाफ g, t इज u बाय जी माइनस टी होल स्क्वायर। बेटे देखो टोटल टाइम लगा u बाय जी, जो ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा वो कैसे निकालना आपने, 0 इज इक्वल टू u माइनस जी इंटू टी। टोटल टाइम लगा ये, और मैक्सिमम हाइट जो अचीव करी वो इसने ये अचीव करी। अब हमें नहीं पता वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हम ये डिस्टेंस मान रहे हैं छोटा h। तो बड़े h में से यदि छोटा h माइनस कर देंगे तो लास्ट t सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटे, देखो दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g माइनस यू टी माइनस हाफ g इंटू बेटे सॉल्व करो इसे, खोलो, ये कितना हो जाएगा, पहले का स्क्वायर t का स्क्वायर माइनस 2ut अपॉन g। नाउ दिस विल बी इक्वल टू बेटे u स्क्वायर बाय g माइनस ut माइनस u स्क्वायर बाय बेटे कितना 2g माइनस हाफ gt का स्क्वायर प्लस बेटे कितना g बाय टू और g बाय टू कैंसिल प्लस ut। अब ये देखिए ये कितना बचेगा अपने पास, ये बचाएगा बेटे ut से ut काट लो, आपके पास क्या आ गया u स्क्वायर बाय जी माइनस यू स्क्वायर बाय टू जी। ये कितना हो गया बेटे u स्क्वायर बाय टू जी, यू स्क्वायर बाय टू जी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। ये क्या आया बेटे अपने पास स्मॉल h। हमें तो लास्ट टी सेकंड का पता करना है, तो लास्ट टी सेकंड में क्या हो जाएगा, बड़ा h माइनस छोटा h, वो लास्ट टी सेकंड का हो जाएगा ये डिस्टेंस बेटा। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब बड़ा h है यू स्क्वायर बाय टू जी माइनस दिस विल कम आउट टू बी हाफ जी टी का स्क्वायर। सो आंसर क्या बनता है बेटे, लास्ट टी सेकंड में कितना चलता है, हाफ जी टी स्क्वायर। आंसर है हमारे पास, यस आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 59th क्वेश्चन देखेंगे बेटे। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो। A man throws balls with same velocity vertically upward, one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? अब बेटे इसमें चॉइसेस दे रखी हैं, वेलोसिटी इक्वल टू 9.8 कर लो, वेलोसिटी इक्वल टू 19.6 कर लो, लेस देन 19.6 कर लो, मोर देन 19.6 कर लो। तो कहता है कि 2-2 सेकंड पे एक आदमी गेंदे फेंके जा रहा है, और हमें क्या पता करना है कि वेलोसिटी क्या रखी जाए उन गेंद की कि एट ए टाइम 2 से ज्यादा गेंदे हवा में हों। तो उसके लिए देखो बेटे पहली चॉइस तो 9.8 है। अगर वो 2-2 सेकंड पे गेंदे फेंक रहा है तो देखो पहली गेंद फेंकी और 2 सेकंड बाद 2 सेकंड तक वेट करेगा, फिर दूसरी गेंद फेंकेगा। तो अगर पहला चॉइस देखें तो इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। अगर आपने एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, इसकी रिटार्डेशन कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटे ये अपने मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम में पहुंच जाएगी, u बाई जी कितना 9.8 बाई 9.8 1 सेकंड। 1 सेकंड बाद ये गेंद बेटा अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी और 2 सेकंड बाद आदमी के हाथ में होगी। यानी कि 2 सेकंड बाद जब वो दूसरी गेंद फेंकेगा तो पहली गेंद उसके हाथ में आ चुकी होगी। इससे पॉसिबल तो है नहीं, तो आंसर ए इज नॉट द पॉसिबिलिटी। अब आंसर बी पार्ट क्या कह रहा है बेटे
इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। अगर अब देखो 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहा है, तो टाइम कितना लगा एक तरफ जाने के लिए, कितना हो गया 19.6 बाय 9.8 बेटे 2 सेकेंड। अब जो हमारी गेंद है, अगर उसने 19.6 मीटर पर सेकेंड से एक गेंद फेंकी है, तो वो 2 सेकेंड बाद मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी। अब 2 सेकेंड बाद वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी। अब देखो बेटे 4 सेकेंड बाद वो उसके हाथ में आ जाएगी। जब पहली गेंद मैक्सिमम हाइट पे होगी तो दूसरी गेंद वो फेंकेगा, और दूसरी गेंद जब ऊपर जाएगी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी तो पहली गेंद उसके वापस हाथ में आ जाएगी। 4 सेकेंड का कुल टाइम है। तो इस तरह से भी बेटे 2 से ज्यादा गेंदें नहीं हो सकती। थर्ड चॉइस है लेस देन 19, ये भी नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब है अगर आपने स्पीड 19.6 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा कर दी तो ही कैन थ्रो मोर बॉल्स। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 60th क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट बेटे 60th क्वेश्चन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, देखो बेटे सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। अब आप देखिए सी पार्ट देखिए बेटे, सी में क्या दे रखा है, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए बाय बी। दोनों साइड स्क्वायर कर दो बेटे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो x माइनस ए बाय बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यानी कि इससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो आंसर बिकम्स सी पार्ट। आंसर क्या हो गया इसका, सी पार्ट। नाउ 61st नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे 61st। रेन वाटर is falling vertically downward with a velocity v. When the velocity of the wind is 0, water is collected at the rate r. When the wind starts blowing at a speed u, the rate of collection of water in the same vessel will be. तो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमारे पास कोई ऐसे बर्तन है और इस बर्तन में बारिश गिर रही है, बारिश यूं स्ट्रेट है, पहले वर्टिकली फॉल कर रही है, और बारिश की जो स्पीड है वो कितनी है बेटे, v। अब जो रेट ऑफ वाटर कलेक्शन है, जो रेट ऑफ वाटर कलेक्शन है, यानी रेट क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ द वाटर गेटिंग कलेक्टेड पर यूनिट टाइम इज रेट। सो रेट आपको दे रखा है, रेट बेटे डिस्चार्ज से भी कहते हैं हम। अब हवा बहने लग पड़ी ऐसे u स्पीड से, तो कहता कि पहले अगर जब हवा नहीं बह रही थी रेट r था, अब नया रेट क्या होगा ये हमने पता करना है। तो बेटे हवा ऐसे बहने लग पड़ी तो रिजल्टिंग वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, ऐसे। वो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटे, रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। दैट रिजल्टिंग वेलोसिटी विल बी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब आप देखिए जो बेटा रेट होता है दैट इज इक्वल टू एरिया वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, एरिया इंटू वेलोसिटी, या इसको आप कह सकते हो ए वी इंटू कॉस ऑफ थीटा। जब तो बारिश सीधी गिर रही थी, कोई रेन की वेलोसिटी नहीं थी, उस समय थीटा क्या था बेटा, 0 था, और जो रेट था आर दैट वाज इक्वल टू ए वी बिकॉज थीटा वाज 0। लेकिन अब बारिश तिरछी गिरने लग पड़ी है, तो बारिश बेटे यदि तिरछी गिर रही है तो आप देखिए वर्टिकल डायरेक्शन ये है, ये रिजल्टिंग डायरेक्शन है बेटे, तो ये एंगल थीटा है। अब आप देखिए इसका एरिया ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा बेटा, ए ऐसे, एरिया वेक्टर बनेगा ऐसे। तो हम कौन से एंगल में इंटरेस्टेड हैं इस केस में, वी आर इंटरेस्टेड इन वेलोसिटी और एरिया के बीच का एंगल। तो वेलोसिटी और एरिया के बीच का एंगल का कॉस लेना है हमने, ये आया बेटे ये एंगल, ये एंगल कितना है, ये एंगल बनेगा थीटा, सेम एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस, और दीज आर पैरेलल लाइंस, और क्या बेटे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो आप देखिए
रिजल्टिंग वेलोसिटी ऐसे है बेटे, और जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे है, और इन दोनों के बीच में एंगल है 180 का। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटे कितना, जो नया रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू बेटे एरिया इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। cos of 180 माइनस थीटा इज व्हाट, cos माइनस cos थीटा। तो ये बेटे हो जाएगा a इंटू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ऑफकोर्स एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, इंटू क्या चीज, इंटू क्या चीज, माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा, नेगेटिव साइन यहाँ एडजस्ट कर दिया। अब cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस cos थीटा की जगह बेस क्या है, v अपॉन रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो आपके पास ये दोबारा से कितना आ गया, माइनस ए वी। यानी कि मैग्नीट्यूड कितना हुआ आर डैश का, आर डैश मैग्नीट्यूड कितना हो गया ए वी। तो वो क्या है, वो इस पुराने के बराबर है। इसका मतलब दोनों सिचुएशन में जो रेट ऑफ वाटर कलेक्शन है वो सेम रहेगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो बेटे इसका आंसर क्या बनता है, डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे 62nd क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, इफ ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम ए बैलून राइजिंग विद एक्सेलरेशन a at the instant when its velocity is v, at the instant when its velocity is v, then immediately after acceleration the and velocity of the stone r। बेटे एक बलून है और ये बैलून जो है इस तरह का होता है, आपको पता ही है, और ये राइज कर रहा है। अब हमने क्या किया, एक स्टोन जो है ना वो ड्रॉप कर दिया, तो बैलून के पास किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v थी और बैलून एक्सेलरेट कर रहा था विद एक्सेलरेशन a। जिस इंस्टेंट पे बैलून के पास वेलोसिटी v थी, हमने एक ऑब्जेक्ट इस पे ड्रॉप कर दिया। तो ऑब्जेक्ट ड्रॉप होने के बाद बेटे क्या होगा, जो वेलोसिटी उस समय थी उस बैलून की, वो वेलोसिटी इस स्टोन को मिल जाएगी, और g इसके पास एक्सेलरेशन है। तो g कैसे है, डाउनवर्ड, और वेलोसिटी कैसे होगी बेटा, अपवर्ड। तो आंसर क्या बनेगा इसका, देखो आंसर विल बी सी पार्ट, g इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, v इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट बेटे 63rd क्वेश्चन देखेंगे। Third question, a body traveling along a straight line traversed 1/3 of the total distance with a velocity 4 meter per second. The remaining part of the distance for half time was covered. The remaining part of the distance was covered with 5 meter per second. Then what is the mean velocity? Mean velocity निकालनी है बेटे। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1/3 डिस्टेंस चलती है बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड से, और बैलेंस डिस्टेंस चलती है 5 मीटर पर सेकेंड से। हमने क्या निकालना है, एवरेज इसकी स्पीड निकालनी है। तो बेटे एवरेज स्पीड आप निकाल सकते कैसे, देखो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस s मान लिया हमने, तो बेटे s/3 डिस्टेंस चल रही है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि जो s/3 डिस्टेंस है 4 मीटर पर सेकेंड से, उसको टाइम कितना लगेगा, s/3 इंटू v प्लस 2s/3 इंटू बेटे कितना 5। ये क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा s अपॉन, ये बेटे एलसीएम ले लो, ये है 12 और 15, तो 12 इंटू 15, और यहाँ आ जाएगा बेटे कितना 15 प्लस 2 इंटू 12, और ये s कैंसिल हो जाएगा बेटे, ऊपर 1 रह जाएगा। तो ये आंसर कितना आएगा, देखो 12 इंटू 15 अपॉन क्या चीज 15 प्लस 24, 15 प्लस 24 कितना हो गया बेटे 39। तो ये आ गया आपके पास कितना 15 इंटू 12
180/39. तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग. तो अगर हमारे पास जो गिवन चॉइसेस हैं उसमें आंसर बेटे ए पार्ट 5 मीटर पर सेकेंड है, बी पार्ट 4 मीटर पर सेकेंड है, सी पार्ट 4.5, डी पार्ट 3.5. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नियरली पूछा उसने आंसर, तो आंसर इज नियरली 5 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे 64th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64th क्वेश्चन. Average velocity of a particle moving in a straight line with constant acceleration a and initial velocity u in first t seconds. तो हमने क्या पता करना है बेटे, एवरेज वेलोसिटी पता करनी है. एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चल रहा है और इनिशियल वेलोसिटी u है और पहले t सेकंड में पता करनी है. देखो बेटे t टाइम में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई. नाउ एवरेज वेलोसिटी इज बेटे नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर बटा टोटल टाइम t. ये कितना हो जाएगा बेटे, u प्लस a/2 इंटू टी. ये हो गई एवरेज वेलोसिटी इसकी पार्टिकल की. तो एवरेज वेलोसिटी है कितनी बेटे, u प्लस हाफ at. तो आंसर इज u प्लस at/2. So answer is u plus 80/2. Answer is C part. Answer बेटे C part है चॉइस में. Now next बेटे 65th क्वेश्चन करेंगे हम. 65th क्वेश्चन देखिए. A train A moves to the east with a velocity 40 km/h and a train B moves north with a velocity 30 km/h. The relative velocity of A relative to B. तो हमने निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज इक्वल टू वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर. तो जो हमारी ट्रेन बी है बेटे उसकी वेलोसिटी कैसे है, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वो टुवर्ड्स साउथ हो जाएगी. उसका नेगेटिव कितनी है, वो 30 टुवर्ड्स साउथ. और बेटे दूसरी जो है ट्रेन ए, ये किस तरफ है, इसकी स्पीड किस तरफ है, ईस्ट की तरफ. तो ईस्ट हो गया ये कितनी है 40. तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटे 50. और कौन सी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन. सो आपके पास आंसर है इसमें 50 km/h एट सम एंगल साउथ ऑफ ईस्ट. सो आंसर इज सी पार्ट. नाउ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 66th क्वेश्चन. 66th क्वेश्चन देखेंगे अब. 66th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, the displacement of a particle moving in a straight line depends on the time t as बेटे x is equal to alpha t का क्यूब प्लस बीटा t का स्क्वायर प्लस गामा t प्लस डेल्टा. ये क्या दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. द रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड्स. द रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी. तो बेटे एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी की रेशियो निकालनी है, यानी कि टाइम t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की रेशियो. आप क्या करो बेटे, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी. पहले वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx/dt दैट विल बी इक्वल टू 3 अल्फा t स्क्वायर प्लस 2 बीटा t प्लस गामा. एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी. एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी बेटे, dv/dt that is equal to d2x by dt का स्क्वायर that is equal to, ये क्या हो जाएगा 6 अल्फा t प्लस 2 बीटा. अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, टाइम t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी आएगी वो कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी. वो किसके बराबर हो जाएगी बेटे, गामा के बराबर. और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी बेटे, वो भी टाइम t इक्वल टू 0 पे आएगी, दैट विल बी 2 बीटा. तो इनिशियल एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी इज 2 बीटा बाय गामा. इसका मतलब क्या है, ये रेशियो किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, बीटा एंड गामा पे. तो आंसर क्या बनेगा इसमें, सी पार्ट. आंसर इज सी पार्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे 67th क्वेश्चन. ये ट्रिकी क्वेश्चन है 67th.
three different masses m1, m2 and m3 are allowed to fall from rest and from the same point O along three different frictionless paths. The speed of three objects on reaching the ground will be in the ratio of. तो देखो बेटे ऐसा है कि हमारे पास थ्री डिफरेंट मासेस हैं, अलग अलग मासेस हैं और तीनों रेस्ट पे थे इनिशियली और तीनों को सेम किसी पॉइंट से अलग अलग पाथ से नीचे भेजा गया. तो वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी दी वेलोसिटी रेशियो. देखो बेटे तीनों को यदि सेम हाइट से फेंका गया है, तीनों को यदि सेम हाइट से ड्रॉप किया गया है फ्रॉम ग्राउंड, चाहे जिस मर्जी पाथ से किया जाए, दो वेलोसिटी गेन्ड होगी दैट विल बी सेम. सो वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी सेम, क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में. तो वेलोसिटीज विल बी सेम. सो रेशियो v1 is to v2 is to v3. बेटे ये किसके बराबर हो जाएगी, 1:1:1. सो जो रेशियोज हो जाएंगी वो हो जाएंगी 1:1:1. नेक्स्ट करेंगे बेटे 68th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 68. A body A starts from rest with an acceleration a1. After 2 seconds, another body B starts from rest with an acceleration a2. If they travel equal distances in 5th second after the start of A, then the ratio a1/a2 is. तो बेटे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 68th क्वेश्चन. नाउ इसमें देखिए क्या है, एक बॉडी A है और दूसरी बॉडी B है, दोनों रेस्ट से चल रही हैं. A बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है बेटा, a1 और B बॉडी की एक्सेलरेशन है a2, यानी दोनों ही रेस्ट से चल रही हैं. लेकिन एक क्वेश्चन में गिवन डेटा है कि जो बॉडी B है ये 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड आफ्टर चलती है. तो बॉडी A के रिस्पेक्ट में पांचवें डिस्टेंस में, पांचवें सेकंड में, 5th सेकंड में दोनों के इक्वल डिस्टेंसेस हैं. यानी कि इसका पांचवां सेकंड, इसका 5th सेकंड, ए बॉडी का 5th सेकंड इसके किसके बराबर होगा, 3rd सेकंड के बराबर. तो यानी कि इसके 3rd सेकंड में और इसके 5th सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है वो क्या है, दैट इज गिवन टू बी सेम. तो देखो बेटे दैट इज गिवन टू बी सेम, तो अब सेम हो जाएगा कैसे, मतलब s5th विल बी इक्वल टू, यू तो 0 है, a1/2 इंटू बेटे 2 × 5 - 1 और s इसका 3rd, इसका 5th मतलब इसका 3rd, दैट विल बी इक्वल टू a2/2 इंटू बेटे 2 इंटू क्या चीज, ये कितना आ गया बेटे 9, ये कितना आ गया s5th is equal to s3rd यानी कि बेटा a1/a2 is equal to 5:9. तो आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट बेटे 69th क्वेश्चन देखेंगे. Question number 69th. The velocity of a bullet is reduced from 200 meter per second to 100 meter per second while traveling a wooden block of thickness 10 centimeter. The retardation assuming its acceleration to be uniform will be. तो रिटार्डेशन निकालनी है बेटे और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मानी गई है. तो अब देखिए वेलोसिटी कहाँ से कहाँ रिड्यूस हुई, 200 से 100, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 100 का स्क्वायर माइनस बेटा 200 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -2 इंटू a इंटू s 10/100. अब देखिए ये कितना हो गया बेटा 10,000 माइनस 40,000 -
1/10, ये कितना आ गया माइनस 30,000 इंटू 10, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई बेटे 15 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इतनी आ गई। नेक्स्ट बेटे 70th क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। From the top of a tower, a particle is thrown vertically downwards with a velocity of 10 meter per second. The ratio of the distances covered by it in the third second and second second of the motion is in the ratio. तो बेटे देखो टॉप ऑफ ए टावर है, वहाँ से एक डाउनवर्ड हमने एक बॉडी फेंकी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमसे क्या पूछ रहा है थर्ड सेकंड और सेकंड सेकंड के डिस्टेंसेस की रेशो। तो एस थर्ड कितना हो जाएगा बेटा 10 प्लस जी बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, और एस कौन सा दूसरा कौन सा है सेकंड, सेकंड सेकंड कितना हो जाएगा बेटे 10 प्लस 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 3, ये कितना हो गया बेटे 10 प्लस कितना हो गया 25 35, और ये कितना हो जाएगा बेटे 10 प्लस 15, ये हो गया बेटा 25। तो रेशो क्या हो जाएगी इन दोनों की 7:5। आपसे उसने पूछी है रेशो थर्ड सेकंड और सेकंड सेकंड की, तो 7:5। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे।